وہ پھر وہیں کھڑا تھا جہاں عائشہ کو توقع تھی۔ اس کے اپارٹمنٹ کے باہر کمپاؤنڈ میں ادھر سے ادھر ٹہلتے گہری سوچ میں زمین پر اپنے قدموں سے فاصلہ ماپتے ہوئے برف باری کچھ دیر پہلے ہو کر ہٹی تھی، اور جو برف گری تھی وہ بہت ہلکی سی چادر کی طرح تھی جو دھوپ نکلنے پر پگھل جاتی، مگر آج دھوپ نہیں نکلی تھی اور اس برف پر جبرائیل کے قدموں کے نشان تھے، بے حد ہموار اور متوازن، جیسے بہت سوچ سمجھ کر رکھے جا رہے ہوں۔ اس نے عائشہ کو باہر آتے نہیں دیکھا تھا، مگر عائشہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ لانگ کوٹ کی دونوں جوبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ جبرائیل نے اسے کچھ دیر پہلے فون کیا تھا، ملنا چاہتا تھا۔ میں گروسری کے لیے جا رہی ہوں اور پھر ہاسپٹل چلی جائیں گے۔ اس نے جیسے بالواسطہ انکار کیا تھا۔ وہ اب اس کا سامنا کرنے سے کترانے لگی تھی، اس کے سامنے آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسی گفتگو کے بعد تو تم کورٹ میں اعتراف کرنا چاہتی ہو کہ احسن سر ٹھیک ہے اور تم نے اپنے بیٹے کی دیکھ بھال میں لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، تم اپنی زندگی تباہ کرنا چاہتی ہو۔ جبرائیل نے بہت خوفی سے اسے تب کہا تھا، مجھے اپنی زندگی میں اب دلچسپی نہیں رہی، اور اگر اسے قربان کرنے سے ایک زیادہ بہترین زندگی بچ سکتی ہے تو کیوں نہیں۔ اس نے جواباً ان سب ملاقاتوں میں پہلی بار اس سے اس طرح بات کی تھی۔ تم مجھے بچانا چاہتی ہو؟ جبرائیل نے سیدھا اس سے پوچھا۔ اسے اتنے ڈائریکٹ سوال کی توقع نہیں تھی اس سے، اور ایک ایسے سوال کی جس کا جواب وہ اسے دینے کی جرات ہی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے کیسے بتا سکتی تھی کہ وہ احسن سر سے اس شخص کو بچانا چاہتی تھی جو اسے اسود کے بعد اب سب سے عزیز تھا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ احسن سر نے اسے جبرائیل کے آپریشن میں ڈاکٹر ویزل سے ہونے والی کوتاہی کے بارے میں بتایا تھا، اسے جبرائیل کے اس معذرت والے کارڈ کی سمجھ بھی تب بھی آئی تھی، لیکن وہ پھر بھی جبرائیل کو معاف کرنے پر تیار تھی، یہ ماننے پر تیار نہیں تھی کہ اس کے بیٹے کی جان لینے میں اس شخص سے ہونے والی کسی دانستہ غلطی کا ہاتھ تھا۔ وہ اسے اتنی توجہ کیوں دیتا تھا، اس کے لیے کیوں بھاگتا پھرتا تھا؟ عائشہ اب دن جیسا ڈیکوڈ کر پائی تھی اور اسے اس احساس جرم سے آزاد کر دینا چاہتی تھی، یہ بتا کر کہ اس نے جبرائیل کو معاف کر دیا تھا اور وہ جبرائیل کو بچانے کے لیے احسن سر کے آگے دیوار کی طرح کھڑی ہو سکتی تھی۔ وہ ایک کام بھی جو زندگی میں اپنی ذات اور اپنی اولاد کے لیے بھی نہیں کر سکی تھی۔ میں تمہیں صرف احساس جرم سے آزاد کر دینا چاہتی ہوں جو تم اسود کی وجہ سے رکھتے ہو۔ اس نے اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ جبرائیل بول نہیں سکا، میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کر سکتا ہوں، مگر تمہیں اپنی زندگی تباہ کرنے نہیں دے سکتا۔ بڑی لمبی خاموشی کے بعد جبرائیل نے کہا تھا، تم اگر احسن کس الزام پر کورٹ میں کہو گی تو میں اپنی غلطی کورٹ میں جا کر بتاؤں گا۔ اس نے عائشہ سے کہا، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا تو تمہیں یہ نہ کرنے دیتا، اور نہیں، تمہارے پاس آنے کی واحد وجہ میرا احساس جرم نہیں ہے۔ زندگی میں احساس جرم ہمدردی تو کروا سکتا ہے، محبت نہیں۔ جبرائیل اسے اس دن جانے سے پہلے کہہ کر گیا تھا، ایسے ہی معمول کے انداز میں، یوں جیسے سر درد میں ڈسپرین ریکمنڈڈ کر رہا ہو یا نزلہ ہو جانے پر فلو ڈائیگنوز کر رہا ہو۔ اس کے جانے کے بعد بھی عائشہ کو لگا تھا اس نے جبرائیل سکندر کی بات سننے میں غلطی کی تھی، اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس بات کو دوبارہ سننے کا اصرار کرتی تاکہ اپنی تصحیح کرے۔ بعض ذہن جی اٹھنے کے لیے ضروری ہوتے، بعض شائبے متاع حیات ہوتے ہیں، یقین میں نہ بھی بدلیں تو بھی۔ اور اب ایک بار پھر سامنے کھڑا تھا، نہیں کھڑا نہیں تھا، برف پر اپنے نشان بنانے میں مصروف تھا، جیسے اس کے پاس دنیا بھر کی فرصت تھی۔ اس کی چاپ پر جبرائیل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ لانگ کوٹ کے اندر اپنی گردن کے مفلر کو بالکل ٹھیک ہونے کے باوجود ایک بار پھر ٹھیک کرتے اس کی طرف آ رہی تھی، اس کی طرف متوجہ نہ ہونے کے باوجود۔ گروسری میں بہت وقت لگے گا میرا، اس کے قریب آتے بغیر محسوس انداز میں اسے جتاتے ہوئے اس نے جبرائیل سے کہا تھا، ہم پھر کسی دن فرصت میں مل سکتے تھے۔ جبرائیل کے جواب کو انتظار کیے بغیر اس نے ایک بار پھر جبرائیل کو جیسے اپنے ساتھ جانے سے روکنے کے لیے کہا، اس کے باوجود کہ جبرائیل نے اسے انتظار کرنے کا نہیں کہا تھا، وہ اس کے ساتھ گروسری کرنے جانے کے لیے تیار تھا۔ اسے صرف اتنا وقت ہی چاہیے تھا جتنا وقت گروسری کرتی، ساتھ چلتے پھرتے وہ بات کر سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں، مگر فرصت میرے پاس تو بہت ہے، تمہارے پاس بالکل نہیں، اس نے جواباً اس سے کہا۔ گاڑی میں چلیں؟ جبرائیل نے بھی اپنے جواب اور اس کے تبصرے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ نہیں، یہاں قریب ہے اسٹور، واکنگ ڈسٹینس پر، گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے۔ عائشہ نے قدم روکے بغیر بیرونی سڑک کی طرف جاتے ہوئے کہا، تم نے عبداللہ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ چند قدم خاموشی سے چلتے رہے تھے، پھر جبرائیل نے اسے پوچھنے میں دیر نہیں کی تھی۔ عائشہ نے گہرا سانس لیا، اسے اس سوال کی توقع تھی لیکن اتنی جلدی نہیں۔ بزدلی اچھی چیز نہیں عائشہ، اس نے چل ہمیں اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد کہا تھا۔ وہ طنز نہیں تھا، مگر اس وقت عائشہ کو طنز ہی لگا تھا۔ ساتھ چلتے ہوئے ان دونوں
अब फुटपाथ पर आ गए थे। बर्फ की चादर पर वो निशान जो कुछ देर पहले जिब्राइल अकेला बना रहा था, अब वो दोनों साथ साथ बना रहे थे। तुम्हें लगता है मैं बुज़दिल हूँ, इसलिए मैंने हसन साद के बारे में अब्दुल्ला को सच नहीं बताया। उसने इस मुलाकात के दौरान में साथ चलते हुए पहली बार गर्दन मोड़कर जिब्राइल को देखा था। बुज़दिल या खौफ, उसके अलावा तीसरी वजह कोई नहीं हो सकती। जिब्राइल ने जिसे अपनी बात की तस्दीक करते हुए टोटोक अंदाज में कहा, तुम्हें डर था कि हसन सर तुम्हें परेशान करेगा, तुम्हें फोन करेगा और तंग करेगा, जिब्राइल ने कहा था। मगर तुमने अब्दुल्ला से झूठ बोलकर हसन साद को बचाकर बहुत ज्यादती की। तुमने मुझे और इनाया को झूठा बना दिया। उसका लहजा अब शिकायती था। आप लोगों के झूठा होने से इतना नुकसान नहीं होता जितना हसन साद के झूठा होने से अब्दुल्ला को होता, आयशा ने जवाबन कहा। वो हाफिज़ कुरान है तो मैं भी हूँ, जिब्राइल ने कहा। आपको उस मुकाम पर बिठा कर नहीं देखता जिस पर हसन को देखता है, आयशा ने जवाबन कहा। वो नौ मुस्लिम न होता तो मैं हसन के बारे में अब सब कुछ बता देती उसे। वो मुझसे मिलने के बाद दोबारा हसन की शक्ल भी ना देखता शायद, मगर वो नौ मुस्लिम है। मैं उसी के मुंह से कहती कि इतने सालों से वो जिस शख्स को बेहतरीन मुसलमान और इंसान समझ रहा है वो ऐसा नहीं है। अब्दुल्ला ने सिर्फ हसन को झूठा नहीं मानना था, मेरे दीन से उसका दिल उचाट होना था। वो कह रही थी उसी मध्यम आवाज में जो उसका खासा थी। मेरे साथ हुआ था एक बार ऐसे। मैं हसन सर से मिलने से पहले बहुत अच्छी मुसलमान थी, आंखें बंद करके इस्लाम की पैरवी करने वाली, जुनून और पागलपन की हद तक दीन के रास्ते पर चलने वाली और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंधी मोहब्बत और अकीदत रखने वाली। लेकिन फिर मेरी शादी हसन सर से हो गई और मैंने इसका असल चेहरा देख लिया। और मेरा सबसे बड़ा नुकसान एक खराब अज़वाजी ज़िंदगी तल्लाक़ असवद की मौत नहीं है। मेरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसने मुझे दीन से बेजार कर दिया। मुझे अब दीन की बात करने वाला हर शख्स झूठा और मुनाफिक लगता है। दाढ़ी और हिजाब से मुझे खौफ आता है। मेरा दिल जैसे इबादत के लिए बंद हो गया है। इतने साल में दिन रात इतनी इबादतें और वजीफे करती रही अपनी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए कि अब मुझे लगता है मुझे अल्लाह से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। मैं मुसलमान हूँ लेकिन मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता काफिर होता जा रहा है और मुझे इस एहसास से खौफ आता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही। और इसलिए हुआ क्योंकि मुझे एक अच्छे अमली मुसलमान से बहुत सारे तवक्कात और उम्मीदें थी और मैंने उन्हें चिकनाचूर होते देखा और मैं अब्दुल्ला को उस तकलीफ से गुजारना नहीं चाहती। अगर वो हसन साद को अच्छा इंसान समझते हुए एक अच्छा इंसान बन सकता है तो उसे बनने दी। वो अपने हाथ की पुष्टि से अपनी आँखों और गालों को रगड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं काफिर हूँ लेकिन मैं किसी को काफिर नहीं कर सकती, बस मुझ में अगर ईमान है तो सिर्फ इतना। वो अब टिश्यू अपनी जेब से निकालकर आंखें रगड़ रही थी। पसंद? मुझे पसंद का नहीं पता मम्मी, मगर आयशा अब दिन मेरी अकल और समझ से बाहर है। वो उससे शदीद हमदर्दी रखता था, मगर अब हमदर्दी तो बहुत पीछे रह गई है। मैं उसे अपने जहन से निकाल नहीं पाता। बार बार उससे मिलना चाहता हूँ, ये जानते हुए कि उसका और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है और ये जानते हुए कि लाइफ पार्टनर के तौर पर मुझे जैसी लड़की की ख्वाहिश है ऐसा उनकी मुतजाद है। मुझे बेहद मजबूत पुरएतमाद जिंदगी से भरपूर करियर ओरिएंटेड हर वक्त हंसती रहने वाली लड़कियां अच्छी लगती जो बहुत अच्छी वैल्यूज भी रखती हूँ। और आयशा में उन सब चीज़ों में सिर्फ 2 होंगी या 3, लेकिन इसके बावजूद मैं आयशा से डिकनेक्ट नहीं रह सकता। कॉफी पियोगी या अभी ग्रोसरी करोगी? वो उसे अब छेड़ रहा था। ग्रोसरी ज्यादा जरूरी है, उसने अपनी रिधामत छुपाते हुए आंसुओं पर काबू पाते हुए कहा। अगर इतनी जरूरी होती तो तुम ग्रोसरी स्टोर को पीछे न छोड़ाती। आयशा ने भी इख्तियार पलट कर देखा। वो वाकई बहुत पीछे रह गया था, बहुत सारी दूसरी चीजों की तरह। आगे बहुत कुछ था। उसने जिब्राइल का नम चेहरा देखा, फिर नम आंखों से मुस्कुराई। कॉफी पी लेते हैं फिर। इमामा ने उस स्क्रिप्ट बुक को पहली नजर में पहचान लिया था। उसी की स्क्रिप्ट बुक थी वो स्क्रिप्ट बुक जिसमें उसने कभी अपने मुमकिन घर के लिए डिजाइनिंग की थी। मुख्तलिफ घरों की मुख्तलिफ चीज़ों की तस्वीरें खींच खींच कर एक कलेक्शन बनाई थी कि जब वो अपना घर बनाएगी तो उसका फ्लोर उस घर जैसा होगा, विंडोज उस घर जैसी, दरवाजे उस घर जैसे, हाथ से बने स्केचेस के साथ। और उसमें उन बहुत से खूबसूरत घरों की मैगजीन से काटी गई तस्वीरें भी चस्पा थी। वो स्क्रिप्ट बुक चंद साल पहले उसने फेंक देने के लिए बहुत सारी रद्दी के साथ निकाली थी और हुम्मी ने सिर्फ फेंकने नहीं दी थी, उससे उस स्क्रिप्ट बुक ले ली थी। और अभी मामा ने उस स्क्रिप्ट बुक को यहाँ देखा था। हुम्मी सिकंदर की उस पेंट हाउस के एक दराज में उसकी मरम्मत की जा चुकी थी और बहुत साफ सुथरी उससे बेहतर हालत में नजर आ रही थी, जिसमें मामा ने उसे आखिरी बार हुमैन को देते हुए देखा था। तुम क्या करोगे इसका? उसने हुमैन से पूछा था। आपको ऐसा एक घर बना कर दूंगा, उसे वही जवाब मिला था जिसका उसे पहले ही अंदाजा था।
वो हुमैन सिकंदर के सरप्राइज को बूझने में माहिर थी। मुझे अब ऐसे किसी घर की तमन्ना नहीं है, इमामा ने उससे कहा था। एक वक्त था पर अब नहीं। अब मुझे बस एक छोटा सा ऐसा घर चाहिए जहाँ पर मैं तुम्हारे बाबा के साथ रहूं और तुम्हारे बाबा के पास वो है, इसलिए तुम इस घर को बनाने में अपनी एनर्जी और वक्त ज़ाया मत करना। उसने हुमैन को नसीहत की। मेरी ख्वाहिश है मम्मी, हुमैन ने उससे कहा था। एक घर मैंने तुम्हारे बाबा से मांगा था, वो नहीं दे सके और तुमसे मैं लूंगी नहीं। मैं कभी सालार को एहसास नहीं होने दूंगी कि तुमने मुझे वो दे दिया जो वो नहीं दे सका। हुमैन को उसकी बात की समझ आ गई थी। सोच ली उसने, जैसे इमामा को चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा था। सोच लिया। वो चैलेंज कबूल करते हुए हंस पड़ी। आपको दुनिया में बाबा के अलावा कोई और नजर नहीं आता? हुमैन ने शिकायत में उससे कहा। हाँ नहीं आता, वो हंसी। जियादत यही है, उसने जताया। इतना तो कर सकती, उसने जवाबन छेड़ा। दादा कहते थे आप दोनों पत्थर के जमाने में भी होते तो मिल जाते। वो अब उसे छेड़ रहा था। वो देखते हंसती थी और हंसती चली गई थी। और अब वो स्क्रिप्ट बुक को खोलते हुए उसे वर्क बवर्क देख रही थी, जैसे अपनी जिंदगी की वर्क गर्दानी करते हुए। उसके पास स्क्रिप्ट बुक आधी खाली थी और अब वो सारी भर चुकी थी। उसने कुछ तजस्सुस के आलम में उन सफ़ों से आगे देखना शुरू किया जो उसने भरे थे। वहाँ भी तस्वीरें थी खूबसूरत घरों की। हुमैन सिकंदर की कलेक्शन थी, उसी की तरह काट काट कर लगाई हुई तस्वीरें। मगर फर्क सिर्फ ये था कि मैगजीन से काटी हुई तस्वीरें नहीं थी, वो खींची हुई तस्वीरें थी हुमैन सिकंदर के अपने घरों की। वो चेहरे पर मुस्कुराहट ले बड़े इश्तियाक से उन घरों की तस्वीरों को देखती जा रही थी। वो यकीनन खुशनसीब था। 30 साल की उम्र तक पहुंचने बगैर दर्जनों घरों का मालिक था। उसकी सारी औलादों में दौलत के मामले में सबसे ज्यादा अमीर और खर्च करने में सबसे ज्यादा फयाज। उसने अपनी जिंदगी की सबसे पहली कंपनी इमामा से कर्ज लेकर शुरू की थी। सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि आपसे कि पापा ने DSF आपके कर्ज से शुरू किया था। उसने इमामा को लॉजिक बताई थी और उस वक्त पहली बार इमामा ने सालार से SIF में दी जाने वाली अपनी असल रकम वापस मांगी थी। और डुबो देगा, मुझे यकीन है। सालार ने उसे खबरदार किया था। वो उस वक्त 16 साल का भी नहीं था और अगर सालार पे तबसरा कर रहा तो गलत नहीं था। जब तुम्हें SIF के लिए रकम दी थी तो पापा ने भी यही कहा था। तुमने डुबो दी क्या? उसे सालार को जिताया था। तुम मुझे हुमैन से कंपेयर कर रही हो। सालार नाखुश हुआ था। पहली बार नहीं कर रही, उसने जवाबन कहा था। कितना वक्त गुजर गया था शायद बह गया था। जिंदगी बहुत आगे चली गई थी। ख्वाहिशात नफ्स बहुत पीछे चली गई थे। इमामा ने हाथ में पकड़ी स्क्रिप्ट बुक अपने सामने सेंटर टेबल पर रखते हुए वहां पड़ा चाय का मग उठा लिया। वो अब सर उठाकर आसमान को देखने लगी थी। वो चंद दिन पहले पाकिस्तान से मुस्तकिल तौर पर अमेरिका शिफ्ट हुई थी और हुमैन का घर उसका पहला पड़ाव था। सालार भी चंद दिन के लिए वहीं था और उस वक्त सुबह सवेरे वो अपने लिए चाय बनाकर पेंट हाउस के उस हिस्से में आकर बैठी थी जिसकी छत भी शीशे की थी। नीले आसमान पर तैरते हल्की बादल उड़ते परिंदों को उस पुरसुकून खामोशी में बच्चों के इश्तियाक से देख रही थी। तभी उसने अपने अकब में आहट सुनी। वो सालार था, चाय के अपने मग के साथ। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए थे। एक तवील मुद्दत के बाद वो यूं अमेरिका में इस तरह फुर्सत से मिल रहे थे, सालार की जिंदगी की भाग दौड़ के बगैर। वो भी उसके करीब कोच पर बैठ गया था। कोच पर उसके बराबर बैठे चाय के 2 मग्स हाथ में लिए दोनों आज भी वैसे ही थे। सालार कम्बू, वो सब कुछ कह देने वाली, सालार सुनते रहने वाला, वो दुनिया जहाँ की बातें दोहरा देने वाली। मगर उनके पास फुर्सत सिर्फ चाय के मग जितनी होती थी। चाय का मग भरा होता तो उनकी बातें शुरू होती और उसके खत्म होने तक बातें और फुर्सत दोनों खत्म हो जाती। चाय का मग जैसे उनकी गुर्बत में गुजारी हुई जिंदगी थी, नरम गरम रुक रुक ठहर ठहर कर गुजरती हुई, लेकिन जितनी भी थी तस्कीन भरी। सालार ने सामने पड़े स्क्रिप्ट बुक को सरसरी नजर से देखा, चल लम्हों के लिए उठाकर उल्टा पलटा, फिर वापस रखते हुए कहा, तुम्हारे जैसे शौक है तुम्हारे बेटे की। मुस्कुरा दी। वो दोनों उसके उस पेंट हाउस में पहली बार आए थे। इस साल रिटायर्ड होने का सोच रहा हूँ, चाय का एक सीप लेते हुए सालार ने इमामा से कहा। कई सालों से सुन रही हूँ, उसने जवाबन कहा। वो धीरे से हंसा। नहीं, अब तुम आ गई हो अमेरिका तो अब रिटायर्ड हो सकता हूँ। पहले तो तन्हाई की वजह से काम करना मेरी मजबूरी थी। वो उसे टीस कर रहा था। 20 साल की होती तो तुम्हारी इस बात पर खुश होती, इमामा ने बेसाख्ता कहा। खैर 20 साल की उम्र में मेरे इस जुमले पर तो तुम कभी खुश नहीं होती, उसने तरकी बतरकी कहा। दोनों बैक वक्त हंसे। ये वैसा घर है जैसा एक बार हमने ख्वाब में देखा था, उस झील के किनारे। सालार ने एकदम आसमान को देखते हुए उससे पूछा। वो भी सर उठाकर शीशे से नजर आते आसमान को देखने लगी। नहीं, वैसा घर नहीं है, इमामा ने एक लम्हे के बाद कहा।
सिकंदर उस्मान की मौत के बाद इमामा ने एक बार फिर वही झील किनारे घर देखा था जो अपनी जिंदगी के कई सालों में बार बार देखती रही थी, मगर इस बार वो ख्वाब उसने बहुत अरसे के बाद देखा था। वो घर ऐसा नहीं था। वो उस पेंट हाउस को गर्दन घुमाकर देखते हुए बड़बड़ा रही थी। वो आसमान ऐसा नहीं था, न वो परिंदे ऐसे थे, न वो शीशा ऐसा। वो घर दुनिया में कभी कहीं नहीं देखा मैंने, वो कह रही थी। उस घर की कोई चीज दुनिया भर में फिरने के बावजूद कहीं नजर नहीं आई मुझे। कभी कभी मुझे लगता है वो घर जन्नत में मिलेगा हमें। वो कहकर खामोश हो गई थी। वो भी चौंके बगैर खामोश ही रहा था। तुमने कुछ नहीं कहा। इमामा ने इसकी खामोशी को कुरेदा। उसने गर्दन मोड़कर मुस्कुराते हुए इमामा को देखा और बड़बड़ाया, आमीन। वो चुप रही, फिर हंस पड़ी। वो आज भी वैसा ही था, मुख्तसर मगर अगले को लाजवाब कर देने वाली बातें कह देने वाला। अगर वो जन्नत है तो फिर मैं तुमसे पहले वहाँ जाऊंगा। वो इमामा से कह रहा था, तुम्हें याद है ना, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जरूरी नहीं, लम्हा भर के लिए चाय पीना भूली। ख्वाबों में सब कुछ सच नहीं होता, उसने बेइख्तियार कहा था। आज भी बिछड़ जाने का ख्याल उससे बेकुल कर गया था। अगर वो आखिरी जन्नत है तो क्या तुम चाहती हो ख्वाब झूठा हो? वो अजीब अंदाज में मुस्कुराया था, एक बार फिर लाजवाब कर देने वाले जुमले के साथ। बस इतना कि तुम वहाँ पहले इंतजार में मत खड़े हो, दोनों इकट्ठे भी तो जा सकते हैं। इमामा ने चाय का मग खाली करके सामने पड़ी मेज पर रखते हुए कहा। उसने अब सालार के बाजू पर हाथ रखा था। वो मुस्कुरा दिया। अब भी कहो ना, उससे कह रही थी। क्या? उसने पूछा। आमीन। वो हंस पड़ा। आमीन। ठीक 9:15 पर लिफ्ट का दरवाजा खुला था और दो सिक्योरिटी गार्ड्स तेज रफ्तार कदमों से बाहर निकले थे और उन दोनों के बिल्कुल पीछे चंद कदमों के फासले पर वो निकला था। उस पूरे कॉरिडोर में एकदम हलचल मच गई थी। वहाँ पहले से खड़े सिक्योरिटी ऑफिसर्स और प्रोटोकॉल के एहलकार एकदम अलर्ट हो गई थी। वो बेहद तेज कदमों से उन दो सिक्योरिटी गार्ड्स के अकब में चल रहा था और उसके बिल्कुल पीछे उसके अपने अमले के चंद अफराद बेहद तेज कदमों से उससे कदम मिलाने की कोशिश कर रहे थे। 1 2 3 4 5 ज़ेर-ए-लब गिनती करते हुए उस टारगेट कलर ने एक कलर जबान से अदा करती अपने रेंज में आने वाले अपने टारगेट पर फायर कर दिया था। उसने बैंक्वेट हॉल के शीशे पर खजे उड़ते देखे। तुमने उससे क्या कहा कि उसने मुझसे बात करना छोड़ दी? हिशाम से मुलाकात के कई दिन बाद तक भी उस मुलाकात के हवाले से कोई अपडेट न मिलने और हिशाम की तरफ से हो जाने वाली पुरस्कार खामोशी ने रईसा को फिक्रमंद किया और वो हुमैन से पूछे बगैर नहीं रह सकी। उसने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया? ये तो अच्छा है, तुम यही तो चाहती थी ना? उसने रईसा को बेहद संजीदगी से कहा था। रईसा को जवाब नहीं सूझा। वो उसकी यूनिवर्सिटी आया हुआ था, ठीक है, मगर तुमने उससे क्या कहा? रईसा ने कुछ बुझे हुए अंदाज में हुमैन से कहा था। वो उसके लिए बर्गर लाया था और अपना रास्ते में ही खाता आया था। अब उसके पास सिर्फ एक टुकड़ा रह गया था जिसे वो बड़े बेढंगेपन से निगल रहा था। रईसा ने अपना बर्गर निकाल कर खाना शुरू कर दिया। उसे पता था वो अपना खत्म करने के बाद उसका बर्गर भी खाना शुरू कर देता। मैंने उससे कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बादशाह छोड़ देता। उसने आखिरी टुकड़ा निकलते हुए कहा और रईसा की भूख मर गई थी। क्या उल्टा मशवरा था, उसने दिल में सोचा था। लेकिन मैंने उससे सिर्फ ये नहीं कहा था। हुमैन अब अपनी उंगलियां चाट रहा था। फिर उसने रईसा से बड़े इत्मीनान से कहा, तुम्हारी भूख तो मर गई होगी, मेरी अभी है। तुमने नहीं खाना तो मैं बाकी खा लूं? रईसा ने खामोशी से उसे बर्गर थमा दिया। उसकी भूख वाकई मर गई थी। मैंने उसे ये भी कहा कि वो वली अहद के लिए मुनासिब उम्मीदवार है ही नहीं, न अहलियत रखता है न सलाहियत, और ये शादी हो न हो, जल्दी या बदेर हो, ऐसे भी वलियात के ओहदे से मासूल कर दिया जाएगा। सो ही हैज़ 2 ऑप्शंस, या तो अपनी पसंद की लड़की से शादी करे और वली अहद का ओहदा अभी छोड़ दे, या फिर बादशाहत की ख्वाब देखते रहने में मोहब्बत भी गंवाए और तख्त भी। हुमैन ने बड़े इत्मीनान से इसे गुफ्तगू का बाकी हिस्सा सुनाया था। तुमने ये सब कहा उससे? इस तरह रईसा को शदीद सदमा हुआ। नहीं, ऐसे नहीं कहा। तुम्हें तो मैं मुहसिब अंदाज से बता रहा हूँ। उसे तो मैंने साफ साफ कहा कि ज्यादा से ज्यादा 3 महीने हैं और उसके पास अगर 3 महीने में वो मौजूद न हुआ तो फिर रईसा से दूसरी शादी कर लेना। वो दांत पर दांत रखे हुमैन सिकंदर को सिर्फ देख कर ही रहेगी। उस गुफ्तगू के बाद अगर हिशाम बिन सबा ने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था तो कोई भी खुददार शख्स यही करता। सबा बिन जराह के खिलाफ शाही खानदान के अंदर शदीद लबई हो रही है और सबा बिन जराह अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए पुराने अमीर की फैमिली में शादी करवाना चाहता है हिशाम की, और ये हो भी गई। तब भी वो बहुत देर तख्त पर नहीं रह सकता। उसके हरीफ बहुत ताकतवर लोग हैं और सबा से ज्यादा बेहतर हुक्मरान हो सकते हैं। अगर सबा हट जाता है तो फिर हिशाम को कौन रहने देगा वहाँ? मैंने हिशाम को ये सब नहीं बताया, तुम्हें बता रहा हूँ। उसने बर्गर खत्म करते हुए हाथ झाड़े और रईसा से कहा,
फाइनेंस करे उसके हरीफों को। उसे रईसा से जिस आखिरी सवाल की तवक्का थी वो ये था। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। फिर हुमैन ने कहा, मैं सिर्फ बिजनेस कर रहा हूँ, अमेरिका में सबा के साथ, बहरीन में उसके मुखालिफिन के साथ। उसने बिलाखिर कहा। वो गोल एतराफ था। क्यों कर रहे हो? रईसा ने जवाबन उससे ज्यादा तीखे अंदाज में उससे कहा। वो उसका चेहरा देखता रहा। फिर उसने कहा, फॉर फैमिली, एनीथिंग फॉर फैमिली। रईसा की आंखें आंसुओं से भर गई थी। मुझे खैरात में मिली हुई मोहब्बत नहीं चाहिए, उसने बढ़ाई हुई आवाज में कहा। वो तुम्हारे लिए मेरे अंदाजे से ज्यादा मुखलिस है। न होता तो मैं तुम्हें बता देता। वो तुम्हारे लिए बात से छोड़ देगा। हुमैन ने दो टोक अंदाज में उससे कहा। उसका चेहरा देखती रह गई। उसने अपने टेलीस्कोपिक राइफल से उस टारगेट कलर को ट्रैकर दबाते देखा। बेहद सुकून और इत्मीनान के आलम में उसने उसकी हल्की सी मुस्कुराहट भी देखी थी। फिर उसने उस टारगेट कलर को बेहद मुतमईन अंदाज में सिर उठाते और टेलीस्कोप राइफल से आंख हटाते देखा और उसने उसे शूट किया। एक मध्यम टिक की आवाज के साथ उसने खिड़की से उसके भेजे को उड़ते देखा और अपने कमरे के बाहर भागते कदमों का शोर। उसका मिशन पूरा हो चुका था। अब उसके लिए एग्जिट तैयार करने वाले उसके मुंतजर थे। इनाया ने अपने हॉस्पिटल की पार्किंग में दाखिल होते अब्दुल्ला की कॉल अपने फोन पर देखी। एक लम्हा के लिए उलझी। फिर उसने उसकी कॉल रिसीव की। मिल सकते हैं? उसने सलाम दुआ के बाद पहला जुमला कहा। वो एक लम्हा खामोश रही। तुम यहाँ हो? उसने पूछा। तुम्हारी गाड़ी के पीछे ही है मेरी गाड़ी। इनाया ने बेख्तियार बैकविंड मिरर से अकब में अब्दुल्ला की गाड़ी को देखा जो उससे डिपर से इशारा कर रहा था। 10 मिनट बाद पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हुए उसकी गाड़ी में आ गया था। उसके हाथ में एक फूल की साथ 2 शाखें थी। इनाया ने कुछ कहे बगैर उसे देखा। फिर वो थाम ली। वो फोन पर पहले अहसन और आयशा के साथ होने वाली मुलाकातों के बारे में उससे बता चुका था। उसने कहा था उसकी जरूरत नहीं। इनाया ने जवाबन कहा, मैंने हॉस्पिटल में डॉक्टर अहसन की इमामत में नमाज पढ़ना छोड़ दी। इनाया ने चौंक कर उससे देखा। मैंने उसे बता दिया कि अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करने वाला शख्स इमामत का अहल नहीं हो। उसे आयशा के खिलाफ सारे इल्जामात वापस लेने होंगे अगर वो दोबारा इमामत करवाना चाहता है तो। अब्दुल्ला बेहद संजीदगी से कह रहा था। ओह, तो इसलिए उसने केस वापस लिया है? इनाया ने बेख्तियार कहा। अब्दुल्ला चौंका। उसने केस वापस ले लिया? हाँ, जिब्रील ने बताया मुझे। उसने एक माजरत का खत भी लिखा है आयशा के नाम। इनाया ने मजीद बताया। ये सब बेकार है। अब वो बहुत ज्यादा नुकसान कर चुका है। आयशा का नहीं, अपना। अब्दुल्ला के लहजे में अब सदगी थी। अच्छे इंसान रिकवर कर जाते हर नुकसान से क्योंकि अल्लाह उनके साथ होता है, बुरे नहीं कर सकते। अब्दुल्ला कह रहा था। He himself is the greatest liar. वो अपने पेरेंट्स के साथ बाबा से मिलने भी आए थे जिब्रील की शिकायत करने। इनाया कह रही थी। बाबा ने उसके बाप से कहा कि वो देखे उसकी मुनाफिकत और तंग नजरी ने उसके अकलौते बेटे को क्या बना दिया है। शर्मिंदा हुए? अब्दुल्ला ने पूछा। पता नहीं, खामोश हो गए थे। हसन सद की मां रोने लगी थी, पता नहीं क्यों। फिर वो चले गए। इनाया ने कहा, तुमने मुझे माफ कर दिया? अब्दुल्ला ने एकदम पूछा। वो मुस्कुरा दी। हाँ, ऐसी कोई बड़ी गलती तो नहीं थी तुम्हारी कि माफी न करती। अब्दुल्ला ने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। बेख्तियार हंसी। अब सब कुछ जुबान से कहना सीखो, सब कुछ लिख लिख के क्यों बताते हो? कार्ड खोलते उससे कह रही थी। फिर वो बात करते करते ठिठक गई। एक हाथ से बने हुए कार्ड पर सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, तुम मुझसे शादी करोगी? इनाया ने अपनी शर्ट की जेब में अटके बाल पॉइंट को निकालकर उस तहरीर के नीचे लिखा। हाँ। अब्दुल्ला मुस्कुराया और उसने उसका बॉल पॉइंट लेते हुए लिखा। कब? इनाया ने लिखा। फूलों के मौसम में। अब्दुल्ला ने लिखा। बाहर। इनाया ने लिखा। हाँ। अब्दुल्ला ने कार्ड पर एक दिल बनाया। इनाया ने एक और। अब्दुल्ला ने एक स्माइली बनाया। इनाया ने एक और। कार्ड लकीरों हरफों हिस्सों जज्बों से भरता जा रहा था। हर चीज सिर्फ मोहब्बत की तर्जुमान थी जो अल्लाह ताला की बेहतरीन नियामतों में से एक है और जिसे पाने वाली खुश नसीब। वो दोनों दो खुश नसीब थे जो उस कार्ड को अहदर तसीदी आज से भर रहे थे। लिफ्ट का दरवाजा खुला। सालार ने अपनी घड़ी देखी। उसके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स उससे पहले लिफ्ट से निकल गए थे। उसका बाकी का अमला उसके लिफ्ट से निकलने के बाद पीछे लपका था। कॉरिडोर में तेज कदमों से चलते इस्तकबाल करने वाले ऑफिशियल्स से मिला था। उसने घड़ी एक बार फिर देखी थी। हमेशा की तरह वक्त पर था। चंद सेकंड्स के बाद वो बैंक्वेट हॉल में दाखिल हो जाता। वहाँ जो होने वाला था वो उससे बेखबर था। बेखबरी जिंदगी में हर बार नियामत नहीं होती। टीवी पर चलती उस खबर को देखते हुए साला गंग था। आखिरी चीज जो वो अपनी जिंदगी और करियर के स्टेज पर होता तवक्का कर सकता था वो ये थी, रहम खाकर गोद ली गई बच्ची को उसके गुनाह के तौर पर पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा था।
और ये सब कहने वाला उस बच्चे का अपना बाप था, जिसकी बीवी की साला ने कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। अफेयर और नाजायज औलाद तो दूर की बात थी, वो ताकत का खेल था, जंग थी, और जंग में सब जायज होता है कहना कि साजिश की जा रही थी। नैरोबी में होने वाले TAI और SIF के इश्तराक के होने से पहले तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, बेकार था। वो सब न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट लेने के लिए मौजूद था जब पहली बार वो खबर ब्रेक हुई थी, और उसने बिजनेस क्लास के डिपार्चर लॉन्ग में देखी थी। उसके साथ मौजूद उसके स्टाफ ने एक के बाद एक न्यूज चैनल्स की अपडेट को उसके साथ शेयर करना शुरू कर दिया था। सलाद सिकंदर ने वहां बैठे सबसे पहली कॉल इमामा को की थी। उसने उसके कुछ कहने से पहले उससे कहा था, मुझे कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं, न मुझे न तुम्हारे बच्चों को, रईसा से बात करो। साला ने जवाब उससे कहा था, मुझे अपने से ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि वो उसकी तस्वीरें चला रही। उसने इमामा से कहा था, वो अपसेट था, उसका अंदाजा इमामा को उसकी आवाज से भी हो रहा था। वो ये वक्त भी गुजर जाएगा साला, इमामा ने उससे कहा था तसल्ली देने वाले अंदाज में। हमने इससे ज्यादा बुरा वक्त देखा है, साला ने सर हिलाया था मामूनियत के अजीब से एहसास के साथ। घर में बैठी औरत उन सब के लिए अजीब ताकत थी, अजीब तरह से हौसला दे रखती थी, उनको अजीब तरीके से टूटने से बचाती थी। वो यहाँ किसी जज्बाती मुलाकात के लिए नहीं आई थी, सवाल और जवाब के किसी लंबे चौड़े सेशन के लिए भी नहीं, लानत और मलामत के किसी मंसूबे को अमली जमा पहनाने के लिए भी नहीं। वो यहाँ किसी का ज़मीर झंझोड़ने आई थी, न ही किसी से नफरत का इजहार करने के लिए, नहीं वो किसी को ये बताने आई थी कि वो हसीयत के माउंट एवरेस्ट पर खड़ी है, नहीं वो अपने बाप को गिरेबान से पकड़ना चाहती थी, न उसे बताना चाहती थी कि उसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी, उसके सेहतमंद जहन और जिस्म को हमेशा के लिए मफलूज कर दिया था। वो ये सब कुछ कहती, ये सब कुछ करती, अगर उसे यकीन होता कि ये सब करने के बाद उसे सुकून मिल जाएगा, उसका बाप एहसास जुर्म में पछतावे जैसी कोई चीज पालने लगेगा। पिछले कई हफ्ते से वो आबला पाती और रातों को सुकून और गोलियां लिए बगैर सो नहीं पा रही थी, और उससे बढ़कर तकलीफदार चीज ये थी कि वो सुकून और अद्वियात लेना नहीं चाहती थी, वो सोना नहीं चाहती थी, वो सोचना चाहती थी उस भयानक ख्वाब के बारे में जिसमें चंद हफ्ते पहले दाखिल हुई थी और जिससे अब वो सारी जिंदगी नहीं निकल सकती थी। वो यहाँ आने से पहले पिछली पूरी रात रोती रही थी। ये बेबसी की वजह से नहीं था, ये अजियत की वजह से भी नहीं था, ये उस गुस्से की वजह से था जो अपने बाप के लिए अपने दिल में इतने दिनों से महसूस कर रही थी। एक आतिश शीशा था, या जैसे कोई अलाव जो उसको अंदर से सिलगा रहा था, अंदर से जला रहा था। किसी से पूछे, किसी को बताए बगैर ये उठकर वहां जाने का फैसला जज्बाती था, अहमकाना था और गलत था। उसने जिंदगी में पहली बार एक जज्बाती, अहमकाना और गलत फैसला बेहद सोच समझ कर किया था। एक इख्तिताम चाहती थी अपनी जिंदगी के उस बाप के लिए जिसके बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकती थी, और जिसकी मौजूदगी का इंकशाफ उसके लिए दिल दहला देने वाला था। उसका एक माजी था, वो जानती थी, लेकिन उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसके माजी का माजी भी हो सकता था। एक दफा का जिक्र था जब वो खुश थी अपनी जिंदगी में, जब वो खुद को बासादत समझती थी और मुकर्रब से मलऊन होने का फासला उसने चंद सेकंड्स में तय किया था। चंद सेकंड शायद ज्यादा वक्त था, शायद इससे भी बहुत कम वक्त था, जिसमें एहसास कमतरी, एहसास महरूमी, एहसास निदामत और जिल्लत और बदनामी के ढेर में तब्दील हुई थी। और यहाँ उस ढेर को दोबारा वही शक्ल देने आई थी, उस बोझ को उस शख्स के सामने उतार फेंकने आई थी जिसने वो बोझ उस पर लादा था, जिंदगी। किसको उस वक्त पता नहीं था कि वो वहाँ थी, किसी को पता होता तो वो आ ही नहीं सकती थी। उसका सेल फोन पिछले कई घंटों से ऑफ था। वो चंद घंटों के लिए खुद को उस दुनिया से दूर ले आई थी जिसका वो हिस्सा थी, उस दुनिया का हिस्सा, या फिर इस दुनिया का हिस्सा जिसमें उस वक्त मौजूद थी, या फिर उसकी कोई बुनियाद नहीं थी, वो कहीं की नहीं थी, वो जहाँ की थी, जिससे ताल्लुक रखती थी, उसको अपना नहीं सकती थी। इंतजार लंबा हो गया था। इंतजार हमेशा लंबा होता है, किसी भी चीज का इंतजार हमेशा लंबा होता है, चाहे आने वाली शे पाँव की जंजीर बनने वाली हो या गले का हार, सर का ताज बनकर सजना उसने या पाँव की जूती, इंतजार हमेशा लंबा ही लगता है। रईसा सालार सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहती थी अपने बाप से, सिर्फ एक छोटे से सवाल का, उसने उसकी फैमिली को क्यों मार डाला था, और अगर उन्हें मार डाला था और उसे क्यों छोड़ दिया था, या उसकी जिंदगी उसके बाप की चौक का नतीजा थी। सवालात की अंबार था जो उससे करना चाहती थी। उसने वेटिंग एरिया में बैठी अपनी सुलगती आंखों को एक बार फिर मसला। वो पता नहीं कितनी रातों से सो नहीं पाई थी। एक भयानक ख्वाब था पिछले 2 हफ्ते, जिसमें उसे पहली बार मीडिया से पता चला था कि उसका बाप कौन था, वो कौन थी, कहाँ से थी। वो सलाद सिकंदर और इमाम हाशिम की बेटी नहीं थी, वो जानती थी, लेकिन उसे हमेशा ये बताया गया था कि वो सलाद के एक दोस्त की बेटी थी जो एक हादसे में अपनी बीवी समेत मारा गया था,
और फिर साला ने उसे एडॉप्ट कर लिया। मगर अब उसकी जिंदगी में अचानक गुलाम फरीद आ गया था, जिसे टीवी पर देखते हुए भी उसका जहन उससे किसी भी रिश्ते से इनकारी था। मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो हकीकत को झुठला नहीं सकती थी। वो सब उस टर्मिनल में उसके पास आ गए थे, हुमैन, जिब्रील, इनाया, इमामा, सालार और हिशाम भी। उसे बताने की उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन थी, क्या थी। वो उनके लिए रईसा थी, वही पहली वाली रईसा। उन सब की शुक्रगुजार थी, ममनून थी, एहसानमंद भी। और उसने उन सबको एहसास दिलाया था कि बिल्कुल ठीक थी, मगर वो ठीक नहीं थी। अंदर होने वाली तोड़ फोड़ बेहद शदीद थी, इसलिए भी कि उस खानदान की जिल्लत और रसवाई का सबब बन रही थी, जिन्होंने उस पर रहम खाते हुए उसको पाला था। उसे एक लहजा भर के लिए भी सालार सिकंदर पर अपने बाप के लगाए इल्जामात के झूठा होने में कोई शक नहीं हुआ था, और उसके आने की वजह भी वही इल्जामात बने थे। वो किसी को बताए बगैर सिर्फ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक आने में कामयाब हुई थी, अपने खानदान को बेखबर रखते हुए। गुलाम फरीद जेल के एक एहलकार के साथ बिलाखिर उस कमरे में दाखिल हुआ था जहां वो बैठी हुई थी। दोनों ने अब खामोशी से एक दूसरे को देखा, फिर वो जेल एहलकार वहां से चला गया। गुलाम फरीद कुछ नर्वस अंदाज में उसे देख रहा था। वो कई लम्हे उसे देखती रही, फिर उसने मध्यम आवाज में कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं? एक लहजा की ताखीर के बाद गुलाम फरीद ने कहा, मैं आपकी सबसे छोटी बेटी हूँ, जिसे मारना भूल गए थे आप। वो तंज नहीं, तारुफ था। वो इसके लिए अपना तरफ किसी और तरह से नहीं करवा सकती थी। वो छुन्नी। बहुत देर गुलाम फरीद उसका चेहरा देखते रहने के बाद बेसाख्ता बड़बड़ाया था। रईसा ने होंठ भींच लिए, उसकी आंखें पानी से भर गई थी। उसके बाप ने बुलाकर उसे पहचान लिया था। वो अब उसका वो नाम याद करने की कोशिश कर रहा था जो उसने लिखवाया था, पर याद नहीं कर सका। उसने चुन्नी को एक बार फिर देखा, बगौर देखा। वो मेम साहब लग रही थी, अपनी सांवली रंगत के बावजूद। उसकी बेटी तो नहीं लग रही थी। वो जानता था उसकी आखिरी औलाद की परवरिश सालार सिकंदर ने की थी। ये उसे उन लोगों ने बताया था जो बार बार उसे बहुत कुछ याद करवाने और फिर दोहराने के लिए आते थे। उसे चुन्नी को देखकर अपनी बीवी याद आई थी। एक नीले जींस और सफेद शर्ट में बाल एक जोड़े की शक्ल में लपेटे, ग्लासेस आंखों पर लगाए, गले में एक बारीक चेन में लटकता अल्लाह के नाम का लॉकेट पहने, कलाई में कीमती घड़ी पहने, उसके सामने कुर्सी पर टांग रखे चुन्नी ने उसे अपनी माँ की याद दिलाई थी। उसके नए नपोश वैसे थे, सारी उंगली में सिर्फ नए नक्शे थे जो पहचान पाया था। वरना बीमार रहने वाली लागर, कमजोर और हर वक्त रोती हुई चुन्नी ऐसे कैसे बन गई थी कि उसके सामने बैठे गुलाम फरीद को उसके सामने अपना वजूद कमतर लगने लगा था। पर पता नहीं अपने एक बच्चे आने वाली औलाद को ऐसे अच्छे उल्ले में देखते गुलाम फरीद को एक अजीब सी खुशी भी हुई थी। वो उस लम्हे भूल गया था कि वो अपनी उस औलाद पर नाजायज औलाद का लेबल लगा रहा था। बरसों बाद उसने कोई अपना देखा था और अपना देखकर फिर भूल गया था। एक लिफाफे में मौजूद कुछ खाने पीने की चीजें उसने बाप की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मैं आपके लिए लाई थी। गुलाम फरीद ने अजीब हैरत से उस लिफाफे को देखा और फिर कांपते हाथों से उसे थाम लिया। उस सारे सवाल जो गुलाम फरीद से करना चाहती थी एकदम तोड़ते चले गए थे। वो नहीं, वो नाराज शख्स जो उसके सामने अपनी जिंदगी की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था, उसे सवाल अब करना बेकार था। उसे उस पर तरस आ गया था। वो उसे अब किसी कटहरे में खड़ा नहीं करना चाहती थी। गुलाम फरीद ने ग्लासेस उतार कर अपनी आंखें साफ करती उस लड़की को देखा जिसने कुछ देर पहले उससे अपना तारुफ करवाया था। तुम पढ़ती हो? उसने बिलाखिर पूछा अजीब से अंदाज में। रईसा ने सर उठा कर गुलाम फरीद का चेहरा देखा, फिर सर हिलाया। गुलाम फरीद का चेहरा चमका। ज्यादा पढ़ना। रईसा की आंखों में नमी फिर उतरी। मैं और तुम्हारी माँ सोचते थे कभी पढ़ाएंगे बच्चों को ज्यादा। और गुलाम फरीद ने यादों के किसी धुंधले को लफ्जों में बदला, फिर चुप हो गया। साहब को मेरा शुक्रिया कहना और दोबारा जेल मत आना। गुलाम फरीद ने चंद लम्हे बाद कहा और रईसा की आंखों की नमी अब उसकी गालों पर फैलने लगी थी। गुलाम फरीद के लिए सालार सिकंदर एक बार फिर साहब हो गया था। अपनी औलाद को ऐसी अच्छी हालत में देखकर रईसा को लगा था उसका बाप शर्मिंदा भी था। उठकर खड़ी हो गई। वो भी खड़ा हो गया था। फिर वो आगे बढ़ा और उसने रईसा के सर पर हाथ फेरा। उसे गला लगाते हुए झिझका था, शायद लगाना चाहता था। उसने आगे बढ़कर खुद गुलाम फरीद को गले लगाया था। फिर उससे लिपट कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा था, अपनी बाकी बच्चों और बीवी के नामों को पुकारते हुए।